یہ عبد المجید موٹانی ہے۔ کچھ سال پہلے یہ بھی ابراہیم حیدری گوٹ کے اکثر نوجوانوں کی طرح ماہی گیری کے پیشے سے وابستہ تھا۔ لیکن اب یہ پیشہ چھوڑ کر میکینک بن چکا ہے۔ پیشے کی اس تبدیلی کے پیچھے ایک المناک داستان ہے، جس کے سائے اب بھی راتوں میں اس کا پیچھا کرتے ہیں۔ کچھ سال پہلے عبد المجید شام 5 بجے کاجر کریک میں ماہی گیری کر رہا تھا۔ کاجر کریک پاکستان کی سمندری حدود میں واقع ہے۔ عبد المجید کی کشتی کے ساتھ 4 اور کشتیاں بھی تھیں۔ ان ماہی گیروں کو بھارتی کوسٹ گارڈ حکام آتے دکھائی دیے، جنہوں نے عبد المجید سمیت 66 ماہی گیروں کو گرفتار کر لیا۔ ماہی گیروں نے احتجاج کیا کہ وہ تو اپنے علاقے میں ماہی گیری کر رہے ہیں، جس پر بھارتی حکام کا کہنا تھا کہ آپ کی کوسٹ گارڈ نے ہمارے ماہی گیر گرفتار کر لیے ہیں، اس لیے ہمیں بھی اسکور پورا کرنا ہے۔ سن 1988 12 جنوری، مجھے تاریخ بھی یاد ہے، شام کے 5 بج رہے تھے۔ اس وقت ہم کاجر کریک پہ، یعنی سیر کریک سے ایک کریک پہلے جو وہ کریکس ہے، وہاں پہ شام کو 5 بجے ہم جالا پھینک رہے تھے۔ وہ جو 4 لانچیں میرے ساتھ اور بھی تھیں، جالا پھینک رہے تو اس دوران جو ہے انڈیا کی کوسٹ گارڈ کی ایک نیوی آئی، انہوں نے آ کے ہمیں اریسٹ کیا۔ وہاں سے 5 لانچوں کو اریسٹ کیا وہاں سے، ان میں 66 آدمی ہم تھے۔ تو جب اریسٹ ان لوگوں نے کیا تو میں نے ان سے سوال کیا کہ بھئی ہم تو اپنے علاقے میں جو ہے فشنگ کر رہے ہیں، آپ نے ہمیں یہاں سے کیوں اریسٹ کیا؟ تو ان کا جواب یہ تھا کہ آپ کے جو میری ٹائم سیکورٹی ایجنسی والے وہ ہمارے علاقے میں آ کے ہمارے ماہی گیروں کو گرفتار کرتے ہیں، اسی لیے ہم نے آپ کو گرفتار کیا۔ اس کے بعد عبد المجید کو دیگر ماہی گیروں کے ساتھ جام نگر جیل میں 18 دن اور پھر پوربندر جیل میں 4.5 مہینے قید میں رکھا گیا۔ یہ وہی پوربندر ہے جہاں 2 اکتوبر 1869 کو ہندوستان کے بانی گاندھی جی کا جنم ہوا تھا۔ ہندوستان کو آزادی دلانے والے گاندھی جی کی جنم بھومی آج پاکستان کے غریب مچھروں کے لیے ایک ڈراؤنا مقام ہے۔ جن کے گھر کے جو لوگ ہیں وہ انڈیا میں بند ہوتے ہیں، تو حکومت کو چاہیے کہ ان کی فیملی کی سپورٹ کرے۔ اتنا زیادہ نہیں کر سکتی، پھر بھی ان کو دیکھیں ان کی گھر کی حالات کیسی ہیں، ان کو ان کے والدین جو ہیں بوڑھے ماں باپ جن کا کوئی سہارا نہیں ہوتے، کچھ لوگوں کے اگر کوئی ایسے بھی ہیں جن کی صرف بیویاں ہیں، بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، تو وہ ایسی مطلب تکلیف میں ہوتے ہیں، تو ان کے لیے کچھ کرے، ان کے ہیلتھ کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے کچھ تو ان کو سپورٹ کرے تاکہ ان کا گزارا تو ہو جب تک ان کا لوگ آئے۔ عبد المجید کی گرفتاری کے بعد ان کے فنگر پرنٹ اور تصاویر بنائی گئیں۔ پھر ان پر الزام لگایا گیا کہ وہ انڈیا کی حدود میں غیر قانونی طور پر داخل ہوئے تھے۔ قید کے دوران عبد المجید کو ان کے اہل خانہ بہت یاد آتے تھے۔ عبد المجید خاندان کے اکیلے کفیل تھے۔ 1.5 مہینے تک ان کا اپنے گھر سے کوئی رابطہ نہ تھا۔ پھر ان کے خط کا جواب ان کے گھر سے آیا۔ عبد المجید کی 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے ہیں۔ قید کے دوران ان کے بچوں کی تعلیم متاثر ہوئی، خاص کر ان کی بیوی تو ذہنی طور پر بیمار ہو کر رہ گئی اور ابھی تک اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں۔ ہم لوگ رمضان کا مہینہ تھا اس ٹائم پہ، صبح سویرے اٹھے تو یہ لمبا کوارٹر ہے ہم لوگوں کے یہاں پر، تو اس کی دیوار سے سیدھا کنارے پہ ڈائریکٹ باہر نظر جاتا ہے۔ تو ایک بندہ ہم لوگوں کا کھڑا ہوا تھا باہر، اس نے ہم لوگوں کو بلایا کہ بھئی آپ لوگوں کی لانچیں آ گئی ہیں۔ تو ہم لوگوں نے وہاں سے جا کے باہر دیکھا تو لانچیں کھڑی ہوئی تھی، گھر میں سب سو رہے تھے، بالکل صبح کا ٹائم تھا۔ تو ہم لوگوں نے جا کے گھر میں شور مچایا کہ بھئی لانچیں آ گئی اپنی۔
फिर सब उठे, फिर सबको उठाया, फिर बाहर गए, वहाँ से लेके आए उनको। अब्दुल मजीद की रिहाई उस वक्त हुई जब पाकिस्तान की तरफ से इंडियन माहीगीरों को रिहा किया गया। इस दौरान अब्दुल मजीद समेत कुल 173 माहीगीरों को आज़ाद किया गया। बड़े भाई को वहाँ भेजा, इंडिया गए, गवर्नमेंट का जो आर्डर हुआ उसके बाद गवर्नमेंट ने इजाज़त दी। फिर वहाँ से भाई गया, वहाँ जाके कागज़ कार्रवाई की और मजीद भाई से भी मिले, चाचा से भी मिले जाके। फिर वहाँ से हमें बताया कि हम अब सब ठीक है और लांचें फलाने तारीख को रिलीज़ हो जाएंगी। फिर ये आए तो फिर हम लोगों ने भी बुलाया, जो इनके आदमी बंद थे उनके रिश्तेदारों को बुलाया कि अपनी लांचें का आर्डर हो गया है, अभी तारीख 5-6 दिन के अंदर हमें लांचें वापस आ जाएंगी। फिर वो हमारे घर रोज़ उनका आना जाना, कब आती हैं। फिर एक दिन पता चला कि लांचें अपनी वहाँ से निकल गई है, तकरीबन 24 या 36 घंटे में वो लांचें पहुँच जाएंगी। फिर हम रात को इंतज़ार करके बैठ गए थे, सब खुश हो गए कि हमें लांचें भी आ रही हैं और बंदे भी आ रहे हैं, इस वजह से सब खुश थे। फिर रात को समझो कि 4-5 बजे लांचें हमारी पहुंची किनारे। अब्दुल मजीद जब रिहा होकर इब्राहिम हैदरी की जेटी पर पहुंचे तो उनकी मां खुद पानी में खड़े होकर उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद थीं। जब अब्दुल मजीद कश्ती से उतरे तो उनकी मां ने उन्हें माथे पर बोसा दिया और वो देर तक रोती रहीं। जब वो इब्राहिम हैदरी पहुंचे तो उनके खानदान समेत इब्राहिम हैदरी के तमाम लोग जश्न मना रहे थे। खवातीन की बड़ी तादाद भी जेटी पर उनके इस्तकबाल के लिए आई हुई थी। अब्दुल मजीद की तरह पाकिस्तान और भारत के सैकड़ों माहीगीर बरसों से दोनों मुल्कों के जेलों में कैद हैं, जिसके बाइस उनके खानदान तंगदस्ती की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। दोनों ममालिक के हुक्काम को इन कैदियों के घर वालों ने मुतअद्दिद बार याददाश्तें इरसाल की हैं, लेकिन ताहाल ये मसला जूं का तूं है। इस वक्त 13 पाकिस्तानी माहीगीर भारतीय कैद में हैं, जबकि भारत के 150 माहीगीर पाकिस्तान की मुख्तलिफ जेलों में कैद हैं। इन कैदियों का कसूर यह है कि वो अपने बच्चों के पेट पालने के लिए समंदर में मछली पकड़ने के लिए अपने घरों से निकले थे, लेकिन घर वापस लौटने के बजाय दूसरे मुल्क की जेल पहुंच गए। माहीगीरों का कहना है कि दोनों ममालिक के कोस्टल हुक्काम बगैर किसी जुर्म के बेगुनाह माहीगीरों को गिरफ्तार कर लेते हैं और इन्हें बरसों तक जेलों में रहना पड़ता है। फिर उनके साथ सुलूक भी जंगी कैदियों जैसा होता है। जो लोग इल्लीगल एक्ट करते हैं, स्पेशली इल्लीगल फिशिंग हमारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट में करते हैं, एमएसए उनको अप्रीहेंड करता है। अप्रीहेंड करने के बाद उनको हम पोर्ट में ले आते हैं और जो नेक्स्ट कंसर्न एजेंसी है उसके हवाले कर देते हैं। और कंसर्न एजेंसी में पुलिस भी आती है, कंसर्न एजेंसी में कस्टम भी आता है। ये है मेन हमारा पर्पज़। और सिर्फ हम उन लोगों को चेक करते हैं जो इल्लीगल फिशिंग या अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं इन आर एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अदर एक्टिविटीज़ में लाइक स्मगलिंग है, लाइक नारकोटिक्स का कारोबार है, ये सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ जो हैं अदर इल्लीगल एक्टिविटीज़ के अंदर शामिल हो जाती हैं। पाकिस्तान और भारत के साहिल एक ही समुंदर यानी बहिरे अरब से मिलते हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान सरक्रीक बॉर्डर पर तनाज़ा चल रहा है। इस तनाज़े की वजह से गरीब माहीगीर फंस जाते हैं। जब गिरफ्तारी एक तरफ से होती है तो दूसरी तरफ से भी इदारे सरगर्म हो जाते हैं, जिससे बेगुनाह माहीगीर मुतासिर होते हैं। अब तक इंडियन कोस्ट गार्ड ने पाकिस्तान के 18 माहीगीरों को फायरिंग करके हलाक कर दिया है। माहीगीर ये समझते हैं कि ये एक जालिमाना अमल है। गुज़िश्ता माह कारूचान के इलाके में इंडियन कोस्ट गार्ड की फायरिंग से एक और माहीगीर मारा गया। माहीगीरों का कहना है कि इस कत्ल पर
हुकूमत ने कोई एहतिजाज नहीं किया, जिसके बाइस ये सिलसिला आइंदा भी जारी रहने का इम्कान है। माहीगीरों के नुमाइंदों का मुतालबा है कि दोनों हुकूमतें बैठकर फौरी तौर पर सर क्रीक का तनाज़ा हल करें। उनका कहना है कि सर क्रीक दरियाए सिंध का 17वां क्रीक है, इसलिए सच्ची बात यह है कि वो पाकिस्तान ही का हिस्सा है। ये जो मसला है, ये असल में जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो कन्फ्लिक्ट है, उस कन्फ्लिक्ट का जो शिकार हो वो गरीब माहीगीर होते हैं। ये सिलसिला जो है वो बहुत पुराना है। माहीगीर जो है वो दोनों तरफ से पकड़े जाते हैं, सालों साल उनको कैद में रखा जाता है और उस वक्त तक रिहा नहीं होते हैं जब तक दोनों हुकूमतें आपस में मिल बैठ कर एग्रीमेंट नहीं करते हैं और फिशरमैन एक्सचेंज नहीं करते हैं, तो वो तब तक जो वो फिशरमैन जो है वो आज़ाद नहीं होते हैं। एक फिशरमैन पकड़े जाते हैं, दूसरे छोड़े जाते हैं। तो ये सिलसिला जो है वो अभी तक चल रहा है, मगर इस मसले का मुस्तकिल हल जो है वो अभी तक जो है वो दोनों हुकूमतों ने तलाश नहीं किया है। इस वक्त तक जो है वो 18 पाकिस्तानी फिशरमैन जो है वो इंडियन नेवी ने फायरिंग करके जो है वो मारे हैं। उनका पाकिस्तान गवर्नमेंट ने किसी किस्म का जो है वो तदारक नहीं किया है। उन माहीगीरों के साथ जो ज़्यादतियाँ हुई हैं, जो माहीगीर कत्ल किए गए हैं फायरिंग के ज़रिए, हम समझते हैं कि एक ज़ालिमाना अमल था इंडियन नेवी का, और आज तक जो है वो कर रहे हैं। आज से 1 महीना पहले जो है वो एक खारोछान का एक फिशरमैन है, उसको जो है वो फायरिंग करके कत्ल किया गया, मगर उसका भी किसी किस्म का तदारक नहीं किया गया और ये सिलसिला जो है अभी तक चल रहा है और कोई जो है इसका मुस्तकिल हल दोनों हुकूमतों ने तलाश नहीं किया है। यूनाइटेड नेशन के सी लॉ के मुताबिक किसी भी माहीगीर को कैद नहीं किया जा सकता, बल्कि उनको सिर्फ तंबीह करके वापस उनके मुल्क भेज दिया जाना चाहिए। यहाँ इस लॉ की भी खिलाफ वर्जी की जा रही है। पहले माहीगीरों को उनकी कश्ती समेत रहा किया जाता था, अब दोनों तरफ ऐसा नहीं किया जाता और कश्तियों को जब्त कर लिया जाता है, जिससे माहीगीरों को करोड़ों रुपए का माली नुकसान होता है। माहीगीरों का कहना है कि इस मसले का फौरी हल ये है कि दोनों ममालिक अपने अपने समुद्र में 50-50 नाटिकल माइल फिशिंग जोन के लिए हदबंदी करें और 100 नाटिकल माइल की हदूद को फिशिंग जोन करार दे दिया जाए। फिर दोनों तरफ के माहीगीरों को वहां फिशिंग करने के लिए स्पेशल पास जारी किए जाएं, ताकि इस बात की निशानदेही हो सके कि वो माहीगीर हैं और उनकी बिला जवाज गिरफ्तारी अमल में ना आ सके। अब्दुल मजीद ने अपनी रिहाई के बाद माहीगीरी छोड़ दी और मैकेनिक बन गया। इसके साथ साथ वो समाजी भलाई के काम भी करता रहा, जिसके बाइस वो इलाके में बहुत पॉपुलर हुआ और लोगों के इसरार पर गुज़िश्ता बल्दियाती इलेक्शन में भी उसने हिस्सा लिया और भारी अक्सरियत से अपने इलाके का काउंसलर मुंतखब हो गया। अब्दुल मजीद ने तो भारत की कैद के बाद अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से मुनज़्ज़म कर लिया, लेकिन बेगुनाही की इस कैद के नतीजे में कोई इंसान अब्दुल मजीद की बीवी की तरह नफ्सियाती मसाइल का शिकार भी हो सकता है। क्या पाकिस्तान और भारत मिलजुल कर इस मसले को जल्द अज जल्द हल नहीं कर सकते?